ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੂ ਕੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਅਵੇਹੀ ਗੱਲੇ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 2 ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 2 ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। 711 अंग दे उत्ते गुरु पंचम पातशाह जी समझाउंदे ने, कहंदे ऐ इंसान जे तैनूं सिमरन दी समझ ना आई, तेरे जीवन विच बंदगी नहीं ते तेरा जीवन जिहड़ा है वो एक सप दी न्याई है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। तेरा जीवन एक सप दी न्याई होवेगा, इस तो अगे कुछ भी नहीं है। ते जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू नाम बीजन की गल आखी है ना, आ पढ़दे हो तुसीं सोरठ महला पहला 595 अंग दे उत्ते ही महाराज ने बचन उचारण कीते ने। मनहाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। उत्थे नाम बीज की गल आखी है कि तेरे जीवन दे विच नाम दा बीज होना बहुत जरूरी है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਫਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। और गुरु नानक सच्चे पातशाह का जीवन पढ़ के देखो, मेरे दातार का 70 साल ते 3 महीने का उन्हां दी हयाती है, उन्हां दा शरीरक जीवन है। शब्द दे विचों सदा साडे नाल सुहाए माने। ये 70 साल की जिहड़ी गुरु नानक पातशाह जी की हयाती है, शरीरक उम्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्हां दे जीवन दे विच देखो किन्ने परोपकार है। जे पिता जी ने 20 रुपये दिते भी जाके खरा सौदा करो, सच दा सौदा कीता, बापू ने मुख ते चपेड़ा मारियां, सहन कीता। उस तो बाद गुरु नानक पातशाह दा तुसीं जीवन पढ़ के देखो भी जे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुंचे ने कंगनवाल दी धरती, पाकिस्तान दी धरती जिहड़ी है, हुण उस कंगनवाल दी धरती ते पहुंचे ते उत्थे एक बहुत ही बड़ा लाचार जिहा ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ 9 ਵਾਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ कि दातार ये दसो मेरे जीवन में जिन्हें दुख आए, कलेश आए, उसका कारण की है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने
बचन पहला सवाल है कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। भी साडा ये जीवन सड़दा है, तपदा है, दुखी आ, ते ओदा कारण की है? जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। ते मालिक ने आख्या जै तन बाणी बिसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। जदों मनुख दे जीवन विचों रब दी सिफत सलाह दी गल खत्म हो जाती है, जदों मनुख दे जीवन विचों रब दी सिफत खत्म हो जाती है, तुसीं रोज ही तां पढ़दे हो, आ 16 साल दे बचन पढ़दे आ, जै कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहिला, सिवरो सिरजनहारो। गुरु नानक पातशाह जी सानूं रोज समझाउंदे ने कि ऐ इंसान जिथे भी रब दी सिफत हुंदी है उत्थे जाके तू बैठिया कर। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस गरीब कोड़ी नूं अपने गल दे नाल लगाया है। जे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उत्तर प्रदेश की धरती शाहजहानपुर दे कोल पहुंचते ने, अज भी कुड़ियाला घाट की धरती जिथे एक कोड़ी पिया होया सी, ओदी कोई बात नहीं पुछदा सी। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपार बख्शिश की, उस कोड़ी का दुख दूर कर दिता। जे असीं भोपाल की धरती ते पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, उत्थे दो चीज़ां देखण वालियां ने। एक तां एशिया की सब तो वड्डी जिहड़ी मस्जिद है वो साडे भोपाल विच है, दूसरा उसे भोपाल शहर दे विच धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा पावन स्थान बनया होया गुरुद्वारा टेकरी साहब, क्योंकि उथों दी भाषा दे मुतलक, खेतरी भाषा दे मुतलक टेकरी पहाड़ी नूं कहा जाता है। इस पहाड़ी दे उत्ते जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आए तां उथों दा एक बहुत वड्डा कोड़ी सी, जिहड़ा बड़ा वड्डा पहला दीवान सी राजे दा। फिर वो जिहड़ा कुकर्म कीते, किसी औरत दे नाल बदफैली कीती, कुकर्म करके जिहड़ा उन्हें बड़ी वड्डी सजा मिली, तन दे उत्ते कोड़ फट गया। ते उस वेले धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ओदे कोड़ नूं दूर कीता, ओदा कोड़ दूर हो गया, ओदे दुख कट दिते। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह मेरे दातार दे जीवन दियां किन्नियां क घटनावां ने, मैं किन्नियां क साझियां करां। सिर्फ उन्हां दे जीवन विच सेवा है, उन्हां दे जीवन विच परोपकार है। धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह दे जीवन च परोपकार है। ये जीवन सानू मिलिया, जरूरी नहीं कि साडी उम्र 100 साल दी होवे, नहीं। गुरु दे प्यार वालिओ, मैं अक्सर एक बेनती जरूर करदा हुन्ना कि जिहड़ा बादशाह औरंगजेब आलमगीर है ना, ओदी उम्र 90 साल ते 17 दिन दी है, 90 साल ते 17 दिन दी। पर जदों असीं उसदा जीवन पढ़दे हां, उस जीवन दे विच सिवाए पाप दे, मकारी दे, झूठ दे कुछ भी नहीं है। अपने भरावां नूं धोखे नाल मारना, अपनी भैन नूं जहर दे देना, अपने पिता नूं 8 साल कैद विच रखना, ये सब कुछ जिहड़ा उस औरंगजेब दे हिस्से विच आया, जिहदी उम्र 90 साल ते 17 दिन दी है। पर दूजे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे साहिबजादे, जिन्हां दी उम्र 7 साल ते 9 साल दे करीब है, जिन्हां ने जीवन नूं समझ लिया, जिन्हां नूं समझ आ गई कि बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। जिन्हां नूं इस गल दी समझ आ गई है कि आ जन्म तेरे लिखे है, फिर वो कदी ये नहीं आखदे कि साडियां उम्रां 90 साल दियां होण, साडी उम्र 100 साल की होवे। वो तो इको गल आखदे ने कि मेरे मालका तू सानू उम्र भावें 90 साल की देवें, भावें 9 साल की देवें, पर एक बेनती जरूर है कि असी सदा तेरे चरनां दे नाल जुड़े रहिए, असी धर्म के रस्ते ते चल सकीए, असी तेरे घर की सेवा कर सकीए, असी तेरे दर की सेवा कर सकीए। और एक मैं बेनती जरूर करना चाहांगा गुरु दे प्यार वालिओ, अज जो तरीक जिहड़ी है, ये तरीक है 28 जून। 28 जून ये वो तरीक है जदों साडे परम सन्मानयोग सरदार अवतार सिंह जी भाटिया, जेड़े कि साडे बड़े वीर जी सरदार परमिंदर सिंह जी भाटिया रायपुर वाले, उन्हां दे सत्कारयोग पिता सरदार अवतार सिंह जी भाटिया, जिन्हां नूं पूरे 27 साल हो गए ने अज परलोक गमन कीतियां, अकाल चलाना कीतियां।
सरदार अवतार सिंह जी भाटिया, मैं उन्हां बारे बहुता नहीं कह सकदा, लेकिन जो कुछ भी मैनूं रायपुर तो पता लगा सी, संगतां तो पता लगा सी, सरदार अवतार सिंह जी भाटिया जिहड़े ने वो गुरु घर दे बहुत वड्डे सेवादार सन। उस वेले दे जिन्ने भी प्रचारक होने, गुरु के कीर्तनी होने, धर्म सिंह जी जखमी जां ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन पंथ रतन, ये जदों भी रायपुर जांदे सी इन्हां दी पूरी टहल सेवा करनी, उन्हां नूं नाल लैके चलना, संगतां नूं जोड़ के रखना, संगतां दे नाल जिहड़ा हर वेले प्यार बना के रखना, ये उन्हां दे हिस्से विच आया। एक वाकियात भी आ जांदा है कई बार कि एक बारी हजूर साहब दे लई संगतां तैयार होईयां ते संगतां हजूर साहब जा रहीआं सी, एक गड्डी दी तैयारी कीती होई ते उस वेले संगतां कुछ शरीर वध गए ते किसी ने आख्या, कहंदे सरदार अवतार सिंह भाटिया जी ये संगत ज्यादा है ते गड्डी इक्को ही है, कहंदे हद हो गई है, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां वो कलगीधर पातशाह दियां असीसां लैण वास्ते जाना, संगत होनी चाहिदी है, गड्डियां तुसीं आखो ते असीं 10 इकट्ठियां कर देवांगे। 2 गड्डियां दे विच संगत लैके श्री हजूर साहब की धरती ते पहुंचे। जिथे उन्होंने संगतां दा प्यार हासिल किया, उत्थे ही सरदार अवतार सिंह भाटिया जी जिहड़े अपने गुरु नूं समर्पित सन। अज जदों गल असीं करदे हां अमरकंटक गुरुद्वारा साहब जी दी, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह दीयां बख्शिशां होईयां ने, जिस स्थान दे उत्ते इस अमरकंटक गुरुद्वारा साहब दे उत्ते साध संगत जी महंतां दा कब्जा सी। इत्थों तक लड़ाइयां झगड़ियां तक गल पहुंची, वो महंत कब्जा नहीं छड्डना चाहुंदे सी सरदार अवतार सिंह जी भाटिया, और उन्होंने उस वेले जिवें किवें भी हो सकिया सब तो मोहरली कतार विच खड़े होके उस वेले महंतां दे कब्जे विचों गुरुद्वारा अमरकंटक साहब नूं जिहड़ा सी वो उन्हां तो आजाद करवाया सी। और होवे भी क्यों ना, जदों असीं इस परिवार नूं देखदे हां, सरदार परमिंदर सिंह जी भाटिया जां उन्हां दे पिता जी सरदार अवतार सिंह जी भाटिया, ये पूरे दा पूरा परिवार भाई बन्नों जी दी वंश विचों है। भाई बन्नों जी जिहड़े धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दी बख्शिशां दे पात्र बने, भाई बन्नों जी ओने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दी जिल्द चढ़वाई सी। भाई बन्नों जी ओने जिहड़े धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां च दिन रात रहिंदे सी, बाबा बुड्ढा जी दी संगत विच रहिंदे सी। ओ भाई बन्नो जिहड़े भाई गुरदास जी दा मोढे नाल मोढा जोड़ के गुरु घर दीयां सेवावां करदे सी, अज उस भाई बन्नो दे परिवार विचों जो भाटिया फैमिलीज है, जो परिवार ने कुछ कानपुर दे विच भी रहिंदे ने परिवार, ते कुछ डोंगरगढ़ जिहड़ा है छत्तीसगढ़ विच उत्थे भी परिवार रहिंदे ने, ते कुछ जिहड़े परिवार जिहड़े ने ओ नागपुर दे विच भी रहिंदे ने, ते कुछ जिहड़े आ रायपुर दे विच रहिंदे ने। सरदार अवतार सिंह जी भाटिया उन्हां दी सब तो वड्डी जिहड़ी देन ये है कि उन्हां ने अपने सपुत्र नूं सरदार परमिंदर सिंह जी भाटिया नूं जिहड़ा है पंथ दी झोली विच पा दिता। अज गुरु के कीर्तनीए जदों भी जांदे ने रायपुर दी धरती ते, इंदौर जांदे ने, भोपाल जांदे ने, बंबे जांदे ने, एक फोन कर दिंदे ने कि भाटिया साहब जी प्रोग्राम दी कोई सैटिंग नहीं हो रही, कुछ किरपा करो। ते उस वेले जिहड़ा है सरदार परमिंदर सिंह जी भाटिया जी किन्ना प्यार दिंदे ने गुरु दे कीर्तनियां नूं, ये तुसीं आप जानदे हो, ये कहण दी लोड़ नहीं है। हुण भी अज 28 तरीक है, लॉकडाउन चलदे पए ने, मंदी दा दौर है, गुरु के कीर्तनीय घरां दे विच बैठे होए ने, पर कीर्तन प्रमोशन ग्रुप जिहदे ते तुसीं साडी विचार सरवण करदे पए हो, अज ओ भी चला के लखां ही संगतां तक गुरु के कीर्तनियां दी आवाज गुरु दे कीर्तन दे नाल जोड़िया जा रहा है। तो ये सिर्फ तो सिर्फ इस परिवार दे हिस्से विच आया है। जीवन है और जीवन का पता नहीं है, ये जीवन किन्ना समा चलना और कदों ये जीवन खत्म हो जाना। पर मैं बेनती करदा कि साध संगत जी इस जीवन दे विच आपां रह के पंथ दी सेवा कर जाइए, गुरु दी सेवा कर जाइए, गुरु की संगतां दी सेवा कर जाइए, तां ही ये साडा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो संसार विच हर इंसान आउंदा है, एक दिन संसार तो असीं मार खप के चले जाते हैं, ओदा कोई मुल नहीं है, ओदा कोई मुल नहीं है। देखो 55.5 साल वजीर खान जिहड़ा है ना, वो सरहंद दी धरती ते रहा, ते छोटे साहिबजादियां नूं किन्ना खत्म करने की कोशिश की, ते कहंदा सी मैं तुहाडी आवाज़ बंद कर देवांगा, मैं तुहानू जिहड़ा है दीवारां 'च चिनवा देवांगा, मैं तुहाडे मुनारियां नूं ओहदे विच तुहानू दफन करके रख देवांगा, मैं तुहाडी आवाज़ तक ना बाहर निकल देवांगा।
सिर्फ 3 रातां गुरु के लाल उस सरहंद दी धरती ते रहे सी ते उन्हां ने इक्को गल आखी सी, वजीर खान तू साडी छड्ड, साडी आवाज की बंद करेगा, असीं तैनूं एक गल दस दिंदे आ, सानू गर्द पई उठदी जापदी ए, जिस विच वजीदिया तो रुल जाना, असीं मर के भी दुनिया च याद होना, तू जी के भी दुनिया च भुल जाना, ये सुराहियां सुनियां रह जानियां, हत्थां चों जाम जदों डुलने ने, तेरे उच्चे मुनारे नहीं रहने, साडे सदा निशान पे झुलने ने। अज देखो उस फतेहगढ़ साहब की धरती ते जाके देखो, जिस वजीर खान दे महल माड़ियां सी, जेदा हुक्म चलदा सी, जेदा सिक्का चलदा सी, जेदियां हुकूमतां सी, जेदी एक आवाज दे नाल कतल कर दिता जांदा सी लखां नूं, अज उस वजीर खान दी उत्थे कोई भी निशानी नहीं है, कोई महल माड़ियां नहीं है। पर 3 रातां भुखण भाणे गुरु के लाल उस धरती ते पहुंचे, जे ठंडे बुरजां विच भी उन्हां नूं कैद कर दिता ते अज ठंडे बुरजां नूं भी सलामां हुंदियां पईयां ने। ओदी एक एक इट दे अगे लखां सीस झुकदे पए ने संगतां दे। जिंदगी विच एक कदी भी ख्याल ना करना कि सानू लंबियां उमरां मिलन, साडे बच्चों नूं लंबियां उमरां मिलन, बस इक्को अरदास करियो, दातिया जिन्नी भी उम्र मिली है, जिन्ना भी जीवन मिलिया, बस ये जीवन तेरे लेखे लग जावे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। गुरु साहब कृपा करन, सारियां संगतां गुरु के कीर्तनीय और कीर्तन प्रमोशन ग्रुप ये सारे दा सारा चढ़दी कला विच रह के सेवा कर सके जी। भुल चुक दी खिमा जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।